ایک پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک دور دراز علاقے میں زاہد نامی نوجوان اپنے والد ناصر کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان پر تھی جہاں وہ دن بھر محنت کرتے۔ گھر میں صرف وہی دونوں تھے اور ان کا سہارا بھی ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر میں بیٹھتے تو ناصر اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹا، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار اللہ کے بھروسے پر چلایا کرو کیونکہ دکان محض ایک وسیلہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپناؤ، چاہے اس کی قیمت تمہیں اپنا سارا مال ہی کیوں نہ چکانی پڑے، اور بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا کیونکہ اللہ تمہیں اس وقت سہارا دے گا جب تمہیں کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ زاہد نے باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو کر کہا، بابا، اللہ نہ کرے کہ اب مجھے چھوڑ کر جائیں، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ ناصر نے بیٹے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرا جانا یقینی ہے لیکن تمہیں کبھی اکیلے محسوس نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے وہی تمہارا نگہبان ہے، اور اگر اس پر یقین رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ باپ کی نصیحت سن کر زاہد کے دل میں ایک سوال اٹھنے لگا، اگر میں محنت کروں، ایمانداری اختیار کروں اور لوگوں کے ساتھ نرمی برتوں تو پھر اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب؟ آخر سب کچھ تو میرے ہی عمل سے ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اکثر اپنے باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن زاہد کو کیا معلوم تھا کہ اللہ اسے ایسا منظر دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اب زاہد کی زندگی بھی اس پر ہنس رہی تھی۔ لہذا وقت گزرتا رہا اور پھر وہ دن آ گیا جس کا ناصر ہمیشہ ذکر کرتا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حقیقت زاہد کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب وہ دکان پر جاتا تو ہر چیز اسے باپ کی یاد دلاتی، گھر لوٹتا تو تنہائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چار دیواری میں اب صرف وہی رہ گیا تھا اور اس کے دل میں باپ کی باتیں گونجتی رہتی جنہیں وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ باپ کے بغیر زندگی مشکل تو تھی مگر جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ زاہد نے خود کو کام میں مصروف رکھا مگر تنہائی کا احساس کبھی ختم نہ ہوا۔ کچھ وقت بعد اسے دکان کے لیے سامان لینے دوسرے شہر جانا پڑا جہاں سے کم قیمت پر مال خرید کر اچھا منافع کمایا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ باپ کے بغیر اتنا دور جا رہا تھا، مگر کاروبار کی مجبوری تھی اس لیے ہمت کرنی پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ گھوڑے پر سوار امید کے سہارے وہ شہر کی طرف چل نکلا۔ راستہ طویل اور اجنبی تھا مگر وہ پر امید تھا کہ منزل پر پہنچ جائے گا، لیکن جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تو اس کی امید بھی ڈگمگانے لگی۔ شام ڈھل گئی، اندھیرا پھیلنے لگا اور زاہد پر تکان سوار ہونے لگی۔ مشکل یہ تھی کہ جو کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لایا تھا وہ بھی خشک صحرا میں ختم ہو چکا تھا۔ اب پیاس اور بھوک نے جسم کو کمزور کر دیا تھا مگر اس سے بھی زیادہ خوف اور ڈر نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں گھنے جنگل سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی وحشی درندہ گھات لگائے بیٹھا ہو۔ گھوڑا بھی بے چین ہو چکا تھا، قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ زاہد نے آرد گرد نظر دوڑائی مگر ہر طرف بے رحم تاریکی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی، بس تھوڑی دیر اور شاید آگے کوئی محفوظ جگہ مل جائے، لیکن حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ خوفناک ہونے والی تھی۔ کچھ اور سفر کے بعد زاہد کی بھوک اور پیاس شدت اختیار کر گئی۔ اب وہ حیران اور پریشان تھا، سوچنے لگا شاید میری موت یہی لکھی ہے۔ نہ جگہ ٹھیک تھی، نہ پانی اور کھانے کا کوئی ذریعہ تھا۔ بھوک تو کسی نہ کسی طرح برداشت ہو رہی تھی مگر پیاس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ گھوڑے کو تیز بھگانے لگا مگر کچھ دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ اندھیرے میں سفر ممکن نہ تھا۔ خوف اور پیاس سے بے حال زاہد بھی زمین پر لیٹ گیا مگر شدید پیاس کے باعث نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیٹے لیٹے اسے اپنے باپ کی بات یاد آئی، بیٹا، اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں تمہیں کوئی نہ ملے۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں سے دعا نکلی، اے اللہ، اگر میرے والد کی بات سچ تھی
तो इस बियाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तो जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और खौफजदा होकर दौड़ने लगा। जाहिद ने जब ये देखा तो गुस्से से कहने लगा, अब ये क्या मुसीबत है? अगर घोड़ा भाग जाता तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता। इसलिए इसने जल्दी से घोड़े का पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और जाहिद ने फौरन उसे काबू कर लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत खड़ी हुई थी। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद कदम ही चला होगा कि दौर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहां जाकर रात गुजारता हूं। पुराने वक्तों में मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने का बेहतरीन इंतजाम होता था। यही सोचकर वो रोशनी की तरफ चलने लगा। करीब पहुंचा तो हैरत से रुक गया। ये तो एक पूरी बस्ती थी। बेशुमार घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि किसी न किसी घर में पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। हैरान होकर दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर जाहिद को सख्त ताज्जुब हुआ, ये कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान और खाली हों। दिल में खौफ सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वो रोशनी की तरफ बढ़ा। वो रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? रात के इस पहर यहां क्या कर रहे हो? जाहिद ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूं, दमिश्क से आया हूं। रास्ता भटक गया हूं और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूं। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जाहिद ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रुक गया। सामने एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। जाहिद भी पास बैठ गया। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? जाहिद ने सारी कहानी बयान कर दी और अब वो इस अजीब बस्ती और माजूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर जाहिद ने बेचैनी से कहा, भाई साहिब, मुझे शिद्दत से प्यास लगी है, मेहरबानी करके मुझे पानी दे दीजिए, भूख से भी निढाल हूं। माजूर आदमी ने सुकून से जवाब दिया, भाई, पानी तो यहां नहीं है। तुम्हें वहां जाना होगा जहां सहरा में दूर रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं से पानी मिलेगा, और खाने का इंतजाम तो अल्लाह ही करेगा। ये सुनकर जाहिद को अजीब सा लगा, मगर भूख और प्यास से मजबूर होकर वो रवाना हो गया। बोझल कदमों के साथ वो रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी झोंपड़ी है और अंदर से कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा है, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। ये देखकर जाहिद के दिल में खौफ पैदा हुआ और कहने लगा, अब ये कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके इसने झोंपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाज आई, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। जाहिद हैरान रह गया, मगर फौरन बोला, हाँ हाँ, मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आए, फिर अंदर आ जाओ। उसने सारी हिम्मत इकट्ठी करके डरते डरते अंदर दाखिल हुआ और जब देखा तो सुकून की सांस ली। सामने एक बूढ़ा शख्स नमाज पढ़ रहा था। कम अज कम ये कोई जिन या इफरीत तो नहीं था। बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाए तो ही वो रास्ते भटकने लगता है। फिर इशारा करके कहा, वहां पानी का मटका रखा, उठाओ और चलो। जाहिद ने मटका उठाया और चल पड़ा, मगर बूढ़े की बातें इसके दिल में गूंजने लगे। ये शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमजोर है? इस सोच ने इसे बेचैन कर दिया, मगर वो खामोशी से वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा, यहीं पानी पी लेता हूं ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए। मगर फिर एक ख्याल आया, माजूर आदमी भी तो प्यासा होगा, थोड़ा ही फासला रह गया है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। ये सोचकर वो तेज कदमों से चलने लगा, मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही मटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। ये देखकर जाहिद को शदीद गुस्सा आया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ अंदर गया। माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? जाहिद ने झिंझला कर जवाब दिया, नहीं,
मुझसे मटका गिर गया। फिर तीखे लहजे में बोला, भाई अब मुझ में मजीद बातों की ताकत नहीं। अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माजूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, अगर वाकई ये शख्स भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद कर, ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। जाहिद को गुस्सा आया मगर खामोश रहा और दिल में कहने लगा, अब ये कम अक्ल देखो, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इस सुनसान जगह हमारी मदद को आए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खटखटाया गया। जाहिद चौंक गया, ये कौन हो सकता है? माजूर शख्स मुस्करा कर बोला, जो भी है तेरे लिए पानी और खाने का बंदोबस्त लेकर आया होगा। ये सुनकर जाहिद हैरत में पड़ गया, ये आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसने दरवाज़ा खोला तो वही बूढ़ा शख्स खड़ा था। मुस्करा कर बोला, तुमसे एक मटका भी नहीं संभाला गया, ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है। तुम्हें खुद की पड़ी है, जानवर का भी तो ख्याल रखा करो। जाहिद हैरान रह गया, ये दोनों तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे सब जानते हों, मगर भूख और प्यास ने सोचने का मौका ना दिया। जल्दी से पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब शिकम सेर हो गया तो सवालात जहन में उभरने लगे। वो माजूर शख्स के करीब गया और बोला, भाई साहब, एक बात पूछनी है, अगर बुरा ना माने। माजूर शख्स ने नरमी से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दो, बहुत प्यास लगी है। जाहिद ने जल्दी से पानी दिया और खुद भी थोड़ा सा पिया, ये सोचते हुए कि ये कौन लोग हैं जो इतनी अजीब बातें करते हैं। जाहिद नींद की शिद्दत से सो गया। सुबह आंख खिली तो देखा कि माजूर आदमी नमाज में मशगूल था। वो खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो वो फिर से बोल पड़ा, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दें। माजूर आदमी मुस्करा कर बोला, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने नई जिंदगी दी, खाने पीने का बंदोबस्त किया, मगर तुमने ना रात की नमाज पढ़ी और ना सुबह की। ये सुनकर जाहिद शर्मिंदा हुआ। फौरन वुजू करके नमाज पढ़ी, फिर घोड़े पर सामान रखा और चलने लगा। माजूर शख्स ने आवाज दी, पूछ लो जो पूछना है। जाहिद ने हैरानी से कहा, यह बस्ती खाली क्यों है? माजूर बोला, यहां बारिश में पानी भर जाता है, लोग आर्जी तौर पर ऊपर वाले इलाके में चले जाते हैं। तो फिर तुम क्यों राके हो? जाहिद ने पूछा। माजूर शख्स ने कहा, मैं जा भी नहीं सकता और इबादत के लिए यह जगह छोड़ना नहीं चाहता। फिर जाहिद ने कहा, और वो बूढ़ा कौन है? अल्लाह का एक नेक बंदा, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। जाहिद ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि खाना आ ही जाएगा? माजूर हंसा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? तुम्हारी तो पहली रात थी, मैं 1 साल से यहां हूं और हर वक्त अल्लाह इंतजाम कर देता है। एक दिन भी अल्लाह ने मुझे भूखा नहीं रखा, सिर्फ कल रात को तुम्हारी वजह से मुझे खाना देर से मिला। फिर वो बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। ये मुसीबत नहीं, रहमत थी। जहां तुमने रात गुजारनी थी वहां से कोई जिंदा नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वो रास्ते बनाने वाला है, चाहे सहरा हो या कोई और जगह। रास्ते में इसे अपने बाप की बातें याद आएं, जो कहता था, अल्लाह ही मुश्किलात देता है और हल करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह वही मिलता है जहां इसे कोई ना मिले। इस वाक़ये के बाद जाहिद का यकीन मजबूत और पुख्ता हो गया और वो हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करने लगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है, मगर अल्लाह के फैसले बेऐब और हिकमत भरे होते हैं। हर आजमाइश तो हमारे गुनाहों का कफारा होती है, इम्तिहान, फिर हिदायत का जरिया। लिहाजा इस पर सब्र करो, अल्लाह सुनने और देखने वाला है।